الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ وعلیکم خیرن السلام۔ کثیرہ ویٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا جو آخری مخارج الحروف کے جو یعنی زبان کا آخری مقام ہے جس سے ہم یہ حروف زبان کا نہیں سوری منہ کا آخری مقام ہے جس سے ہم یہ حروف ادا کریں گے اور یہ 4 حروف ہیں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں تو ایک منٹ 4 حروف کون سے ہیں آپ کے سامنے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فا ہے میم با اور واو ان کو کہتے ہیں حروف شفویہ حروف شفویہ شفاتین سے یہ ادا ہوتے ہیں 3 حروف شفاتین سے ادا ہوتے ہیں اور ایک جو حرف ہے فا جو ہے یعنی اس میں 2 مخارج ہیں شفاتین میں 2 مخارج پائے جاتے ہیں اور 4 حروف ہیں تو دو مخارج جن میں سے فا جو ہے اس کا اپنا مخرج ہے میں نے دعا بھی نہیں پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رحمن يا رحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمین ثم آمین تو انشاءاللہ تعالی ہمارے حروف شفتین حروف شفویہ ان کو دیکھتے ہیں تو حروف شفویہ میں ہم نے دونوں ہونٹوں کا یا پھر 2 ہونٹ ایک ہونٹ نیچے والا اور اوپر والے 2 دانتوں کا استعمال ہوتا ہے وہ فا ہے جس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے نا تو ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں اوپر کے دانتوں کا سرا فا کے لیے اوپر کے دانتوں کا سرا اور نچلے ہونٹ کا گیلا حصہ فا اس طرح تو یہ علیحدہ ہے یعنی کہ اس کا سیٹ علیحدہ بنا لیں حروف شفویہ میں اس کا 2 مخارج ہیں تو اس کا سیٹ علیحدہ بنا لیں میم با اور واو ایک دائرے میں کر لیں اور فا ایک دائرے میں کر لیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا یعنی کہ اس کا حرف اس کا مختلف ہے یہ جو دانت آپ کو نظر آ رہے ہیں فا کے لیے یہ دانت اس وقت دکھائی نہیں دے رہے ہوتے فا تھوڑے سے یعنی کہ یہ لگیں گے اس لیے آپ کو دکھایا جا رہا ہے اور ہوا جو باہر نکلتی ہے ٹھیک ہے اب ان کی ہم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی تعریف لکھتے ہیں حروف شفاتین ہونٹوں سے ادا ہونے والے 4 حروف شفاتین میں فا کا مخرج اوپر کے 2 دانتوں کا سرا یا کنارہ نیچے کا ہونٹ ہے اس کے اندرونی حصہ جو ہے اس سے لگتا ہے گیلا حصہ اندرونی حصے سے لگتا ہے باہر کے حصے سے نہیں لگاتے ہم کیونکہ وہ پھر بدل جاتا ہے کیونکہ وہ اور لیٹر کا مخرج ہے تو اس کی آواز بھی بدل جائے گی لیٹر کوئی اور ہو جائے گا تو اس کے لیے اندرونی حصے سے جا کر لگتے ہیں زور نہیں لگانا اس کے لیے فا کے لیے فا بہت آسانی سے نکل جاتا ہے صرف ٹچ کرنا ہے صرف جا کے لگانا ہے زور نہیں اوپر دے رہا اگر آپ
फा करेंगे तो जे एक ना तकल्लुफ़ ही करना है, और फिर इसकी आवाज़ भी जो है इसमें भी पीछे से ज़ुबान भी नहीं उठानी, ठीक है? बाहर हवा आनी चाहिए इसके लिए, ज़ोर लगाने से हवा बाहर नहीं आएगी ठीक तरीके से, और इसकी हवा ज़रूरी है कि बाहर आए। इस थोड़ी-सी जगह से जो होती है कहते हुए दूसरी साइडों से जो जो हवा जो है उसकी बाहर आ रही होती है दांतों के नीचे से ही गुजर के, क्योंकि अगर बहुत जोर से जाके टच कर देंगे तो जाहिर है कि वो हिस्सा बंद हो जाएगा, और फिर हवा का दबाव जो है यानी कि वो साइडों की तरफ इधर उधर से निकल जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हवा बिल्कुल उन्हीं दो दांतों के सिरे के अंदर से होती हुई फा के ऊपर टच करने से आ रही है। तो इसलिए हमें इसका बहुत ख्याल रखना है कि उस थोड़ी-सी जगह से ही हवा बाहर आए, इधर-उधर ना निकल जाए। यफ़अलून यफ़अलून, अगर फ़ा के लिए आपके बिल्कुल जो नकली हम कहते हैं ना, नकली उसका इस्तेमाल होता है, मखरज नहीं होता ठीक तरीके से, तो और हम उसको अपनी तरफ से अदा कर रहे होते हैं गलत मखरज के साथ, तो वो फिर दाँत काफ़ी नज़र आ रहे होते हैं, तो वो 2 आगे वाले दाँत तो वो इस तरह नज़र नहीं आने चाहिए। फ़ा, 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 फ़ा इस तरह हो जाता है। फ़फ़िर्रु आप कह सकते हैं, फ़फ़िर्रु, 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 अब लंबा करें इसको, फ़फ़िर्रु, अफ़ अफ़, जब अफ़ कहेंगे तो फिर आपको असल मखरज का पता चलेगा इसका, ठीक है? अफ़ अफ़ कहें आप, आपने अपना 1 मिनट में बंद करूँ आपको, म्यूट करूँ और आप अपना करें इसकी प्रैक्टिस। अफ़ 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 फ़फ़िर्रु फ़फ़िर्रु, रू जो है इसका मोटा होगा क्योंकि ये लफ्ज़ है तो वो और बात है, लेकिन क्योंकि मैं कह रही हूँ तो आपको बता दूँ। सवाफ सवा स्वाद के साथ है ये। सवाफ बड़ी मद जो वाव के आगे अलिफ होगा उसके ऊपर बड़ी मद होगी। तो ये अगर आप इसको पीछे से ज़ुबान की जाड़ ऊपर उठा लेते हैं, ऊपर की तरफ कर लेते हैं, तो क्या होता है, क्योंकि ज़ुबान की जाड़ तो ज़ुबान का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है? ज़ुबान का अमल दखल इसमें नहीं है, ज़ुबान को नीचे ही रहना चाहिए, और वोकल कोड जो है पीछे मैंने बताया था, ये वोकल कोड है आपका, ये देखें येलो में ये एक बॉक्स है, वोकल बॉक्स आप कहते हैं, जहाँ पे आवाज़ जहाँ से बाहर आती है। तो अगर इसको इसमें आप यानी कि वोकल कोड से कोशिश करेंगे इसको निकालने की तो वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसका वी सा बन जाएगा, वी वी जैसे इंग्लिश वाला लेटर वी होता है ना, वा की बजाय फा की बजाय वा थोड़ी सी इसकी आवाज आएगी, तो ये फिर ये भी गलत होगा मखरज, तो इसको बहुत एहतियात के साथ जहां से ये निकलता है वहां पे ही यानी कि 2 ऊपर वाले दाँत जो हैं उनको नीचे लाना है, और निचले होंठों के होंठ से लगा देना है, बस लगा देना है, ज़ोर नहीं देना। फिर मैं कह रही हूँ कि ज़ोर इसको नहीं देना, क्योंकि ज़ोर देने से इसके मखरज में फ़र्क पड़ जाएगा, यानी कि इसकी हवा बाहर नहीं आएगी। अब आते हैं हम दूसरा जो सेट है, ये एक सेट खत्म हो गया, इसमें एक ही हर्फ था बस। अब दूसरा सेट जो है, इसमें हम देखते हैं कि मीम, बा और वाव है। मीम मीम को हम देखते हैं कि मीम के लिए हमारे दोनों होंठों का इस्तेमाल होता है, और दोनों होंठों का जो खुश्क हिस्सा है उससे मीम अदा होता है। मीम भी सिर्फ एक दूसरे से लगता है, उसके ऊपर जोर नहीं दिया जाता।
तो ज़ोर देने से वो शद का एहतमाम जैसे शद होती है तो वो हो जाएगा वो भी बहुत वो भी ज़ोर दे के नहीं करते। अगर हम बहुत ज़्यादा कई लोग जब कोशिश करते हैं इसको ठीक निकालेंगे तो फिर बिल्कुल होंठ जो है दोनों अंदर की तरफ ले जाते हैं, यानी कि होंठ अंदर ले जाते हैं मुँह के और फिर मीम कहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मीम बिल्कुल ऐसे खुश्क हिस्सों से ही अदा होता है। फैल के लगती है इसकी आवाज़ फैलती है थोड़ी-सी जैसे स्माइली सा मुँह हो, लेकिन मुँह क्योंकि होंठ दोनों बंद हुए होते हैं, तो इसलिए इसकी जो आवाज़ होती है, वो नाक की तरफ जाती है। तो नाक से बाहर आती है फिर इसकी आवाज़, तो इसलिए कहा जाता है कि मीम और नून में नेचुरल कुदरती गुन्ना पाया जाता है। मीम और नून की आवाज़ में कुदरती इनमें गुन्ना होता है। इनमें आपको या मुझे डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो बा और मीम में फ़र्क क्या है? बा जो है यानी कि मीम दोनों होंठों को मिलाने से अदा होता है और मीम और बा में सिर्फ फ़र्क इतना है कि मीम में गुन्ना होता है और बा में उसमें कुछ उसकी मजबूत सिफात पाई जाती हैं बा में। तो मीम जो है इसमें ये फ़र्क पाया जाता है कि मीम में जब आप बंद करते हैं होंठों को तो आवाज़ जो है वो डाइवर्ट होती है नाक की तरफ, तो नाक का बांसे से फिर होती हुई हवा बाहर आती है। बिल्कुल ये जो है हिस्से जहाँ से क्योंकि जहाँ पे बंद है दोनों होंठ तो आवाज़ इधर को जाएगी। अब आवाज़ बॉक्स तो ये है ना, तो आवाज़ क्या होगा, आवाज़ इधर को इधर से आने की बजाय अब इधर को चली जाएगी, तो नाक के रास्ते ये बाहर आएगी आवाज़ जो है। अगर आप मीम के लिए इसको कोशिश करते हैं यानी कि नाक की तरफ आपकी आवाज नहीं जा रही, तो फिर क्या होता है कि अब उम, इस तरह होगा, नहीं होगा। जब करते हैं तो वो अम तो ऑटोमेटिकली आवाज जो है वो ऊपर चली जाती है नाक की तरफ। और नाक से जे नाक की हड्डी जहाँ पे जो होती है बांसा जो हिस्सा होता है जहाँ पे, उससे होती हुई आवाज बाहर आ रही होती है। नून में भी यही है अन, तो आवाज डाइवर्ट होती है और नाक से बाहर होती है। सिर्फ नाक का ये इस्तेमाल है हमारे मखारज में। नाक का क्या इस्तेमाल है, एक इससे गुन्ना होता है बस, गुन्ना करके आवाज बाहर आती है। इख्फा में भी इसकी आवाज जाके छुपाई जाती है। और ये मीम और नून जो है इनमें ऑटोमेटिकली जब आप वैसे भी मीम कहें मीम तो उधर आवाज जाएगी और नून कहें तो उधर आवाज जाएगी, नाक में से होती हुई बाहर आएगी। क्योंकि नून के लिए भी बंद हुआ होता है ना मखरज, आगे से जुबान का सिरा जो उठा होता है, तो इसलिए। लेकिन जो ज़ुबान है उसका कोई अमल दखल नहीं है इनमें, ज़ुबान का अमल दखल नहीं होगा। इसलिए इसके ऊपर बहुत यानी कि ख्याल रखना है इस बात का। मीम के और भी असूल हैं, जैसे मैंने बताया था कि रा के हम बाद में करेंगे, तो मीम जज़्म वाली के अपने असूल हैं कुछ, तो वो हम बाद में इंशाल्लाह करेंगे। इसको बहुत डिटेल से इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मीम को। इस वक़्त थोड़ा-सा ही कि हमें पता चल जाए कि क्या करना है इसमें, कि जब गलत कैसे निकाल रहे हैं उसका फ़र्क करना है। अगर दूसरे हर्फ किसी से के मखरज में जाकर उसको मिला रहे हैं या उसके मखरज की तरफ बढ़ रहे हैं तब उसका ख़्याल रखना है। बहुत आसान हर्फ है ये, मीम अगर ये ठीक अदा रहा हो तो हर ज़ुबान में मीम आसानी से अदा हो जाती है। ये यानी कि दोनों होंठ जब आपस में जुड़ते हैं तो कोई हवा बाहर नहीं निकलती, बस इसका ख़्याल रखना है। क्योंकि अगर बाहर बहुत ज्यादा हवा यानी कि बाहर निकाल रहे हैं साइडों से ऐसे कर रहे हैं
तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई कोशिश करते हैं ये भी आवाज निकालने की, उसे ठीक अदा करते हुए। कैसे? खुद जबरदस्ती कुछ हवा बाहर भेज रहे होते हैं ना। जी इसके लिए ना, मीम के, सॉरी फा को मैं कह दिया, मीम के लिए फा का मैंने बताना शुरू कर दिया। फा के लिए जबरदस्ती थोड़ी सी होती है, लेकिन ये है कि मीम के लिए जो है हवा बाहर नहीं आती, बंद हो जाता है। तो ये फिर ये है कि जब नाक के बांसे से जाती है बांसे में, तो वहां पे ठहरती नहीं है। ये भी याद रहे, ठहरती नहीं है। कब ठहरती है? इंशाल्लाह जब हम इख्फा पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे। लेकिन जहाँ पे ठहरती नहीं है, इसके रास्ते से बाहर आ जाती है, चलती रहती है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं कि चलती रहती है। वहां पे ठहरती नहीं है, चलती रहती है। तो चलते चलते जाहिर है कहाँ जाना है? जब पानी बह रहा हो कहीं, तो किधर जाता है? आखिर में जब वो चलता रहता है कोई रुकावट के बगैर, तो क्या होता है? बाहर नहीं, वो कहीं जाके रुकता है। ज़ाहिर है समंदर में पड़ता है, जो भी दरमिया दरिया में पड़ता है, कहीं जाता है। लेकिन ये है कि इसका ख़्याल सिर्फ़ यही है कि रखने की बात कि मीम की आवाज़ जो है वो नाक के ज़रिए बाहर आती है। अगर आपका, जैसे हम कहते हैं ना, मेरा आज नाक बंद है, यानी कि कोई ज़ुकाम वगैरह हुआ हुआ है, साइनसेस ब्लॉक हैं जिसकी वज़ह से थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, तो उस वक़्त ख़ासकर ख़्याल रखा जाए कि मेरी मीम कुरान की तिलावत करते हुए निकल रही है कि नहीं। जैसे मैं आम तौर पे कहती हूँ, मीम जो है वो जज़म वाली मीम की आवाज़ एंड पे आनी चाहिए। तो अम भी नहीं कहते, अम और अम जो है ये गलत है, क्योंकि हम मीम के मखरज से बाहर आ जाते हैं और उसमें एक हर्फ ऐड हो जाता है। ठीक है? इसमें ऐड ऑन नहीं करना, क्योंकि जब कहते हैं तो एक आगे एक हर्फ हम ऐड कर देते हैं। उससे हमने परहेज़ करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें आसानी के साथ यानी कि जी इसको पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये है कि जब हम इधर-उधर मखरज दूसरे की तरफ चले जाते हैं, तो ये फिर मुश्किल हो जाती है, लगती है। अब बा की तरफ आते हैं। बा जो है, दोनों होंठों के गीले हिस्से से अदा होती है। बा दोनों होंठों का गीला हिस्सा, ये अंदर वाला हिस्सा। ये जो है, जहाँ पे मीम जो है, इसके लिए जहाँ पे लिपस्टिक लगाई जाती है, औरतें लिपस्टिक लगाती हैं, तो वहां से अदा होती है। यानी ये मीम जो है, खुश्क हिस्सा मीम मीम ये लगता है। और जहाँ पे क्या है कि सॉरी, जो दोनों होंठ हैं, इनको क्या किया जा रहा है? बंद बंद किया जा रहा है। तो बंद करने में क्या होगा? बा 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 नहीं करना, यानी सख्ती से बा 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 मोटा नहीं कर देना इसको ना। ये इनमें से कोई भी हर्फ मोटा नहीं है, तो मोटा करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि यूं ही जुबान को हरकत दी नहीं तो इनमें गलती हो जाएगी। जुबान बिल्कुल अपनी रिलैक्स होती है। ठीक है, जुबान जो है वो रिलैक्स रहती है। अगर ज़ुबान को इधर-उधर किया तो फिर इनमें यानी, क्योंकि ज़ुबान का अमल दखल नहीं है ना, ये इनका कोई भी ऐसा नहीं है, जो भी लेटर है जिसमें कि ज़ुबान का कोई अमल दखल हो। तो बिल्कुल इनको यही याद रखने की बात है कि फ़ा के लिए वोकल कॉर्ड जो है वाइब्रेशन नहीं वहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि वो वी जो लेटर वो वी होता है इंग्लिश वाला, उसकी आ जाएगी। बा के लिए आपके होंठ गोल होने चाहिए कि सॉरी, बा के लिए आपके होंठ बंद, जिस तरह यानी कि ये शक्ल दिखाई गई है आपको, बा गीला हिस्सा लग जाना चाहिए एक दूसरे के साथ, तो बस बा बा तो बंद होते हैं ना होंठ, ये भी बंद होंठों के गीले हिस्से से बा अदा होती है। आप क्या लिखेंगे कि बा दोनों होंठों के यानी बंद होंठों के दोनों बंद होंठों के गीले हिस्से से बा अदा होती है। तो ये फिर
जब आप बा कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फौरन बहुत सारी हवा बाहर, जो ट्रैप थी वो बाहर आई है। पीछे से ट्रैप हुई थी हवा, क्योंकि ज़ाहिर है बा पहले आप बंद की थी किए होते हैं होंठ, और फिर जब खोलते हैं बा तो वो फौरन एक हवा जो है वो ट्रैप हुई हुई जो जैसे लगती है तो वो फौरन बाहर आती है। और बा के लिए रिलैक्स होनी चाहिए ना, ज़ुबान रिलैक्स होनी चाहिए, बिल्कुल हरकत नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर ज़ुबान पीछे से उठाई जाए या किसी तरह इसको हरकत दी जाए तो फिर इसमें क्या होगा कि किसी और लेटर की आवाज़ निकल रही होगी, बा नहीं फिर होगी, ठीक है? जब जे अब जे आपका कुछ नहीं होगा अगर बा के साथ ऊपर जज़्म है, तो आप कोशिश कर रहे हैं बा जज़्म वाली निकालने की। अब जब तक आप ये ना कहेंगे, कलकला ना करेंगे, कैसे? क्योंकि जज़्म वाली बा के ऊपर कलकला होता है, इसको छोड़ दिया जाता है फिर। है उन ऊँटों को जब खोला जाता है तो अब बहुत आसानी से अब हो जाता है फिर, ठीक है? इसमें आपका फिर यानी कि कलकला आ जाता है। कब कलकला आएगा? जब बा के ऊपर जिस्म होगी, क्योंकि हरूफ़े कलकला जब हम पढ़ेंगे तो उनमें मैंने बताया भी है सारे तकरीबन। आज ही ये है लहते लास्ट वन, बाकी तो हमने कर लिए हैं। तो जो बड़े हमारे 5 मेन मखारिज थे, उनके हाँ, उनको हमने कवर कर लिया। नून का जो 5वाँ मखरज है इसका, आज मैंने मीम का भी बता दिया, नून का मैंने पहले बता दिया था, तो ये भी कवर हो गया। ये इन्हीं दोनों में कवर होता है, ये कोई ख़ास इसमें अलहदा नहीं होता। नून जो है, नाक का बांसा जो है 5वाँ बड़ा मखरज, ये इन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह आज हमारे मखारिज जो हैं ये ख़त्म हो जाएँगे, और इनकी फिर इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि कितने हम बहनों को समझ कितनी आ गई है और कहाँ अभी बाकी है कि मेहनत थोड़ी-सी करनी पड़े। तो इंशाल्लाह आप कहें अब बा, अब, 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 बा, बा, बी, बू, बा, बी, बू, बा, बी, बू, बा, बी, बू। आप खुद ही पता चल जाएगा कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कि जिस्म का कौन-सा हिस्सा कहाँ लग रहा है। तो इसके लिए ख़्याल क्या रखना है, ज़ुबान पीछे से नहीं उठनी चाहिए, ज़ुबान को किसी तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए बा के लिए, वरना ये गलत हो जाएगा। अब देखते हैं हम वाव, आखिरी हर्फ हमारा वाव। वाव के लिए बिल्कुल भी होंठ इतने गोल भी नहीं करने चाहिए, देखिए बिल्कुल राइट साइज है इनका, राइट बिल्कुल है, गुलाई आई हुई वाव, वाव, वाव। तो अगर बिल्कुल गोल करके वाव, वाव निकालने की कोशिश करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा जोर लगाना है इससे। तो ये होती है गैर मदिया, वाव गैर मदिया। इसको क्या कहते हैं? आप जहाँ पे लिखेंगे वाओ गैर मदिया, ये वाओ गैर मदिया है, यानी हर तरह की बाकी वाओ इसमें वाओलिन भी आ जाएगी और हरकत वाली वाओ भी आ जाएंगी। तो इसके साथ लिखना ये जरूरी है, क्योंकि हमने मदिया वाओ पढ़ ली थी, वाओ मदिया, क्योंकि उसका मखरज और है। क्या मखरज था उसका? जे हिस्सा, खाली हिस्सा, ठीक है? मुंह और गले के पिछले वाला खाली हिस्सा, मुंह का खला और गले का ये हिस्सा, खाली हिस्से से हवा बाहर, हवा के साथ बाहर जैसे उनकी आवाज आती थी, जहां पे हवा रुके वहां पे उनकी आवाज खत्म हो जाती है, यानी कि आवाज खत्म, हवा खत्म, आवाज खत्म। तो ये किसका मखरज था? वाओ मदिया का। अब वाओ, ये गैर मदिया जो है, इसका क्या है? इसका मखरज होंठों की गोलाई है। होंठों को गोल करने से आता है, जैसे ओ सा ओ थोड़ा सा ना ओ की शक्ल सी करने से अदा होती है, जैसे आऊ, आऊ, आऊ वाला। अगर बिल्कुल वाओ के ऊपर शद हो और आप करें आऊ वाला, तो इतने होंठ बाहर निकल जाएंगे आपके कि ये गलती में फिर आ जाएगा, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है? बिल्कुल उनको कहते हैं ना एक्स्ट्रा
जोर नहीं उनके ऊपर लगाना। कोशिश जैसे युसव्वीरुकुम बहुत आसानी के साथ शब्द भी युसव्वीरुकुम, वाव की आवाज तो आएगी। अगर वाव वाव के ऊपर नबर होती है ना, या और वाव के ऊपर नबर हो रही होती है जब शद हो तो इसके ख्याल ये रखना है कि शद अदा करते हुए इतना सख्ती से नहीं करना कि यानी कि होंठ इतने बाहर आए हुए हों और उनके ऊपर सख्ती किए ऐसे किया जाए। सव्वीरु सव्वा सव्वा, बस इतना ही। सव्वा नहीं करना यानी और होंठ गोल करके बाहर नहीं, बिल्कुल बाहर नहीं आने चाहिए होंठ, ठीक है। होंठ थोड़े से बाहर आते आपको नजर आएंगे क्योंकि जाहिर है गुलाई आई है तो थोड़े थोड़े से गुलाई फिर ही आएगी ना, ये जहाँ पे राउंड थोड़े से राउंड होंगे तो फिर गुलाई आएगी। अब ये होल जो है, ये होल जो सुराख है, इससे हवा बाहर आती है, ठीक है। इससे हवा बाहर आती है, ऊ ऊ ऊ इस तरह। इंशाल्लाह ताला इसमें गलती जो है वो के होंठ अगर गोल ना हो, क्या गलती होती है आमतौर पे? अगर होंठ गोल ना हो तो अलिफ की आवाज आती है, अव्वला अव्वला। आप अब आसानी के साथ वाव के लिए होंठ खुले हुए हैं, अव्वला कर रहे हैं। तावीली वीली वी, बिल्कुल यानी कि होंठों को गुलाई दी नहीं। तावीली वी, वी के लिए ये होंठों को गोल थोड़ा होते हैं तो फिर यानी कि पूरे होते हैं होंठ गोल, जितना वाव के लिए होने चाहिए। तो वाव के लिए होंठ गोल करने के बाद आप जो भी हरकत हो या कुछ हो तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं। अगर आप वाव के लिए कोई तगो-दो नहीं कर रही हैं, आप नहीं उसकी मेहनत नहीं, उसके ऊपर मेहनत नहीं कर रही, तो फिर ये है कि ख्याल रखना है बस शीशे के आगे खड़े हों और थोड़ी देर प्रैक्टिस करें इसकी तो पता चल जाएगा, क्या मेरे होंठ बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं वाव को गोल करने के बाद, या फिर ये है कि थोड़े से निकल रहे हैं लेकिन वाव गोल गोलाई आई हुई है होंठों में वाव के लिए। तो दूसरी गलती ये है कि जब होंठों को बहुत ज्यादा गोल कर दिया जाए शद के लिए। तीसरी गलती, क्योंकि इसमें गलतियां होती हैं। तीसरी गलती क्या है कि अगर जुबान को दरमियान से ऊपर कर ले तो भी वाव में या की हिंट आ जाती है, क्योंकि या का मखरज दरमियान वाला हिस्सा है ना, या जुबान का दरमियान वाला हिस्सा तालू की तरफ, दरमियानी तालू की तरफ उठता है ना। तो इसमें फिर या किसी थोड़ी सी हिंट आने लगती है, इसको बचाना है इससे, ठीक है। जुबान को बिल्कुल हरकत नहीं देनी, यानी कि वाह वाह थोड़ी वो उसमें होगी, बा की तरह तो बिल्कुल हरकत नहीं देनी, लेकिन वाव के लिए थोड़ी सी जाहिर है होंठ गोल कर रहे हैं तो वो अंदर वो भी हिस्सा है, लेकिन उसका कोई अमल दखल नहीं है इसमें। लेकिन इसमें जो गलती होती है उस गलती के लिए मैं बता रही हूँ कि वाव में जब गलती होती है ना कि वो यानी कि ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा भी ऊपर उठा लेते हैं और वाओ कहते हुए, जब आप कह के देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। वाओ जब करते हैं ना क्योंकि ज़ोर एक्स्ट्रा लग रहा होता है ना तो ज़ुबान की जो दरमियानी हिस्सा हो वो भी ऊपर उठ जाता है, तो इसको बचाना है, ठीक है। ये फिर वाव मदिया के लिए हमने कर लिया था ऊ बू तू, है ना। तो इसमें वाव लीन आती है जो गैर मदिया में है, आऊ आऊ आऊ, बहुत सारे आसानी के साथ हम कह सकते हैं आऊ आऊ। और याद का तो अब हमने पहले कर लिया है, ये वाव का मखरज यऊ यऊम यऊम, वलद वलद वलद। अब वलद के लिए होंठ जो है इसके लिए गोल होने चाहिए, यऊ में भी होंठ गोल होंगे तो फिर ही आएगा। बहुत ज्यादा गोल नहीं करने, जे मैं बार बार कह रही हूँ, इतने गोल नहीं करके बाहर निकाल देने, यानी गोल तो करने हैं, इतने बाहर नहीं निकाल देने कि उसका मखरज जो है बिगड़ जाए, बिगाड़ना नहीं है।
गोल करने हैं होंठ, लेकिन मखरज को बिगाड़ना नहीं है, बस ये याद रखें। तो इंशाल्लाह ताला इसकी हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो और ज़्यादा समझ आ जाएगी। अव्वला अव्वला अव्वल, जिस तरह भी हम अव्वल व आखिर भी कहते हैं, तो इसमें अव्वल आप कह के देखें इनको। तो अलजौफ वाओ लीन का वाओ मदिया कहाँ से अदा होती थी? अलजौफ, यानी इसका वाओ गैर मदिया कहाँ से अदा होती है? होंठों से, होंठों को गोल करने से। ये फ़र्क है इनमें, फ़र्क इनमें साथ-साथ ही लिखें, क्योंकि वरना आप होंगे थोड़े से परेशान कि अब ये कैसे निकलने चाहिए और वो कैसी थी, क्योंकि दोनों के मखारज मुख्तलिफ हैं, जगह निकलने की मुख्तलिफ है एक ही लेटर, लेकिन गैर मदिया में इसका असल मखरज जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मदिया वाव में हम इसका मखरज इस्तेमाल, जो इसका असल मखरज है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, उसकी आवाज जो है कहीं और से आ रही होती है। इंशाल्लाह ताला वाव के लिए कहाँ से आवाज आती है? वो सुराख से बाहर आती है, जहां से सुराख से बाहर आ रही होती है। तो अगर आप ये होंठ बिल्कुल गोल नहीं किए हुए वाह वाह कह रहे हैं वाह, तो उसमें अलिफ की आवाज भी सुनाई दे रही होती है वाह। तो ये नहीं होनी चाहिए, इसमें जो गलती है इसको ठीक करें इंशाल्लाह ताला। दूसरी एक और गलती कि जब वाओ मोटे लेटर से पहले आए, जब वाओ मोटे लेटर से पहले आए तो फिर हम मुंह को खोल देते हैं, तो मुंह को खोलना नहीं है, ठीक है? तो मुंह को नहीं खोलना, ठीक है? खोल के नहीं पढ़ना। क्या है? जब वाओ मोटे हर्फ से लेटर से या हर्फ से पहले आए, जैसे ए, वल्लाहु, वल्लाहु, इसके लिए वल्लाहु कह दे, वल्लाहु, जा वल्लाहु कर दे, वल्लाहु। वाओ को भी मोटा कर दे, क्योंकि वाओ हर्फ मोटा नहीं है, ठीक है? अगर आप वाव को मोटा कर देंगे तो क्या होगा, इसमें लाम के साथ है, क्योंकि अल्लाह का नाम है ना, इसमें जलाला वाव जबर के साथ है, तो इसमें जलाला से पहले जबर आ रही है, तो हम इसमें जलाला के लाम को तो मोटा करेंगे, लेकिन साथ में वाव को मोटा नहीं कर देंगे। इसका ख्याल रखना है कि वाव को पहले उसके होंठ वाव इस तरह, वल्लाहु, वल्लाह, अल्लाह का नाम जो है वो मोटा रहेगा, वल्लाहु। तो वल्लाहु नहीं करना, यानी मोटा नहीं करना उसको, क्योंकि वो आपका फिर मुंह थोड़ा सा खुला रहेगा वल्लाहु करते हैं तो। और भी हो सकते हैं कई जो कहा जाता है कि तरकश जो है तरकी वाले, वो अपनी थोड़ा सा या का हिंट वो लाते हैं कहते हुए ना, उनकी आवाज में या का हिंट आ जाता है वाव में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सब गलतियों से पाक करके कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और जितना भी है इसमें मिलती जुलती आवाजों वाले जो हरूफ हैं उनको हम पहचाने इंशाल्लाह। इनका मैं अलहदा भी हम रखते हैं कि मिलती जुलती आवाजों वाले सारे हरूफ निकाल के उनको अलहदा अलहदा उनकी पहचान की जाए, जैसे अभी मदिया वाओ और गैर मदिया वाओ की। और फिर ये है कि या जो है, या भी मदिया भी होती है, गैर मदिया भी होती है ना। गैर मदिया या कहाँ से थी? गैर मदिया या जो थी दरमियानी हिस्सा, जहाँ पे दरमियानी हिस्सा हलक का और दरमियानी हिस्सा जुबान का। तो इस तरह वाव में भी क्योंकि वो जोड़ा है ना उधर, तो इसलिए उनको अगर इकट्ठा याद कर लेंगे तो अच्छा है कि वाव मदिया और या मदिया जो है वो मदिया है और ये गैर मदिया है। वाव का भी अपना, गैर मदिया का मखरज है अपना, ही एक घर है। और फिर ये ऐसा ही नहीं है कि जैसे कोई किसी का अपना भी घर हो और फिर किसी के साथ जाके काम करे और उस घर में भी रहे, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है कि दो इंसानों का कारोबार हो, और जब वो कारोबार कर रहे हों तो वो इकट्ठे उस घर में भी रहें या उस घर से भी निकले, और उनका अपना भी एक अलग-अलग घर भी हो। तो इंशाल्लाह
अल्लाह सुब्हाना ताला हमें आसानी हमारे लिए पैदा करे। और अब हम बढ़ते हैं अपने कुरान की तरफ। कुरान की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान में हम अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट करती माजरत खा हूँ। अनम्यूट अभी मैं करती हूँ आप लोगों को, तो आप फिर देखेंगे कि कुरान में जो इसकी प्रैक्टिस होगी। और अगर आपके पास कोई सवाल है, यानी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई आपने एक्स्ट्रा करना है जो मैंने कवर नहीं किया, और आपके पास कोई और नॉलेज है, तो आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम उसके ऊपर बात कर लेंगे। अब अपने आप को दें, अपना हैंड खड़ा करें, हाथ खड़ा करें अपना, और इंशाल्लाह हम इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्द ज़िलज़ालहा। सूरत ज़िलज़ाल हम देखते हैं। सूरत ज़िलज़ाल में तकरीबन ये सारे ही हैं। तो सूरज ज़िलज़ाल जब तक मैं निकाल रही हूँ, आप देखें कोई अगर आपके लिए सवाल है, आप कोई कन्फ्यूजन है, कोई पूछना चाहते हैं, तो जो बहन भी पूछना चाहती है बोल पड़े अब जल्दी से। सब बहनों को क्लियर है? ठीक है, सूरह कारिया ही कर लेते हैं क्योंकि बाकी सर, ये जो आपने कहा कि मोटे हर्फ से पहले वाव को कैसे प्रोनाउंस करना है? अल्लाह सुब्हाना ताला का नाम जैसे नहीं हम कहते हैं, अब आसानी के साथ मुंह खोल देते हैं वल्लाहु, सॉरी, जी वल्लाहु वल्लाहु कर देते हैं, तो उसको मोटा करते हुए, लाम को मोटा करते हुए साथ में हम वाव को भी मोटा कर जाते हैं ना। जी, हम तो कंफ्यूज जब थी थोड़ा। वाव को क्योंकि वाव मोटा हर्फ है। रजिया बहन आप बताएं कि जी, वाव मोटा हर्फ है नहीं कि नहीं बारीक है? नहीं, मोटा नहीं। मोटा नहीं है, तो फिर अब दूसरों को मोटा करते हुए हम साथ में उसको तो नहीं मोटा कर देंगे ना। तो जी इसलिए लेकिन कुछ लोग मोटा कर देते हैं उसको भी, पूरे का जितने यानी कि बारीक हर्फ है वो भी अगर हम आ रहे होते हैं ना उसके अल्लाह के नाम के पहले, तो उनको भी मोटा कर जाते हैं। तो ये हाँ हमने जी, देखना है कि हमने ऐसा नहीं करना। अल्लाह सुब्हाना ताला ने जैसे हमें दिया है उस तरह हमने इस्तेमाल इसको करना है। ठीक है, सूरत जज़ाकल्लाह खैर। आदियात हम खोल लेते हैं। जी हाँ, खुल गई है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। स्क्रीन अभी मैं शेयर कर देती हूँ और आप इसको पढ़ना शुरू कर दें इंशाल्लाह। ठीक है, तस्नीम बहन आपका हाथ खड़ा है, तो आप मैं ऐसा करती हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा पढ़ती हूँ सभी के लिए, ताकि आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल आदियाति दबहा। दब बा के लिए कलकलाब होगा। अगर आप दब हा कर देंगे तो बा जो है दब जाएगी, यानी कि उसको बा का कलकला नहीं होगा, बा के ऊपर छोटा कलकला होगा। क्योंकि कलकला भी 3 तरह के होते हैं, इंशाल्लाह उसके भी ऊपर हम जाएँगे तो फिर देखेंगे। वल आदियाति दबहा। दब हा दब, बहुत आसानी के साथ इसको दब, दौद मोटा रखते हुए दब हा, हा के लिए मुंह खोल देना है। फल मूरियाति कदहा। कदहा। फल मुगीराति सुबहा। अब जहाँ पे बा की हमारी प्रैक्टिस नीचे जाके होगी और भी, लेकिन जहाँ पे हमारी बा की प्रैक्टिस है, तो अब तस्नीम बहन आप पढ़ें। गाइन को भी मोटा रखना है, रॉ को भी मोटा रखना है। इसमें स्वाद मोटे आ रहे हैं,
قاف موٹا ہے، کافی موٹے حرف بھی ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے. خود صداغ تین قز میں سے 3 حروف آ رہے ہیں انشاءاللہ. 4 ہے بلکہ. ٹھیک ہے پڑھے 3 4 کون ہے آنی بہن؟ باری میں پڑھ رہی ہوں، میوٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان باللہ الرجیم. باللہ اعوذ باللہ من نہیں، اب باللہ الشیطان. ہی آپ کر دیتے ہیں، آگے اللہ کے نام کو لمبا کرنا ہے نا، لام کو، اچھا. اللہ کے لام. اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن. الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا. اب آپ میرے پیچھے اس کو کہیں ول، ول کے لیے واو ہے نا، ول تھوڑا سا واو آپ ول بہت آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی ہونٹ گول نہیں ہے. والعادیاتی ول، ٹھیک ہے. واو کو موٹا نہیں کرنا. ول لام موٹا ہے کہ باریک حرف ہے؟ بریک باجی باریک ہے تو لام کے مخرج سے باہر آنا ہے کہ ادھر ہی رہنا ہے؟ ادھر رہنا بچی. ادھر ہی رہنا. ٹھیک ہے. والعادیات ضبحا. ہا کے لیے منہ کھولیں. ضبحا. فالموریات منہ، قدحا. اب منہ کے لیے ہونٹ گول کریں گے. یہ واو مدیہ ہے اور پیش ہے میم کے اوپر. منہ فالموریات مو کیوں ہے؟ مو کیوں ہے میری بہن؟ مو تو نہیں ہے نا، کیونکہ یہ جو پیش والے حرف ہوتے ہیں ہاں جی ان کو ہم ایسے نہیں پڑھتے کہ اس کے لیے ہونٹ گول ہونے چاہیے. اب مو کہہ رہے ہیں آپ، مو تھوڑا سا یعنی یا کی طرف بھی ساتھ میں جا رہے ہیں آپ نا، ہونٹ تھوڑے سے گول کریں. اور ٹھیک ہے. فالموریات قدحا. فالموریات قدحا. قدحا فالموریات قدحا. قدحا. ہا کے لیے منہ کھول دیں. ہا قدحا. موگی فالمغیرات. نہیں ہے آپ کے پیش نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پیش کے لیے آپ کے ہونٹ نہیں گول ہوتے، پیش والے حرف کے لیے ہونٹ گول ہو جاتا ہے. منہ 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 پیش کے لیے بھی ہونٹ گول ہوتا ہے جیسے واو کے لیے ہوتا ہے. پیش کے لیے منہ. فالمغیرات صبحا. فالمغیرات صبحا. غین موٹا حرف ہے کہ باریک ہے؟ موٹا باجی. موٹا ہے تو اس کو موٹا کریں. فالمغیرات صبحا. مغیرات. فالمغیرات صبحا. اچھا، یہ کافی غلطیاں ہیں، آپ اس کو کسی قاری کو سنیں پلیز، کیونکہ غلطیاں ایک تو یہ لام بھی ہے، واو بھی ہے، اور یہ ہے کہ پیش بھی ہے، پیش والے جتنے حروف ہیں وہ بھی ہیں. ہا کو ٹھیک کریں، جو موٹے حروف ہیں ان کو موٹا رکھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہا کے لیے اپنا منہ کھول دیں گے تو ہا ادا ہو جائے گی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اور اب فوزی عثمان، آپ بہن آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا پہلے. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ. اعوذ باللہ من آپ الشیطان اپنے زال کو ذرا کا الرجیم. خیال رکھیں، زال کا. ٹھیک ہے، زال کو اعوذ جی. زو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان میں الرجیم. نہیں ہے، میں نہیں ہے، کیونکہ من مجھول نہیں پڑھنا زیر کو. الشیطان الرجیم. 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا. ول منہ تو گول کرنا ہے لیکن لام کو موٹا نہیں رکھنا. ول آدی، پھر نکالیں
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. اسے پھر کہیں فالمغیرات صبحا. فالمغيرات صبحا فالمغیرات صبحا. فالمغيرات صبحا. را بھی موٹا ہے اور جہاں پہ غین بھی موٹا ہے تو آپ کیا، کیونکہ غین تو ہمیشہ ہی موٹا ہے لیکن را کنڈیشنلی موٹی ہے، ٹھیک ہے. تو جی را جہاں پہ موٹی ہے اور غین موٹا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ آپ میم کو بڑا لمبا کر رہے تھے، کھینچ رہے تھے، اور غین کو چھوٹا رکھ رہے تھے، یہ پرابلم زیادہ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے. جی. فالمغيرات صبحا صبحا صبح نہیں ہے، آپ کی پیش جو ہے گول نہیں ہے. صبح صبح صبح. صبحا صبحا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اپنی جو غلطیاں ہیں ان کے نیچے نشان لگائے. یہ آپ کی میم لمبی نہیں ہے، غین لمبا ہے، کیونکہ یا مدیہ ہے، اس کے حروف مدہ بن رہا ہے جہاں پہ، ٹھیک ہے. تو جی ان کے بھی نشان لگائے. اور آپ جتنی آپ کی پیش ہے، زیر اور پیش پہ توجہ دیں، کیونکہ زیر مجہول نہیں ہونی چاہیے، پیش مجہول نہیں ہونی چاہیے. پیش کو ہونٹ گول کیے جاتے ہیں، اس طرح پڑھنا چاہیے. اگر ہونٹ نہیں گول ہوتے تو اس میں نے پہلے لیسن میں نے بتایا تھا کہ کیا کیا ہوتا ہے نا. تو اگر آپ کو ابھی نہیں تو اس کی طرف جائے اور اس کو سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. جزاک جی اللہ باجی، خیرن جزاک کثیرہ. اللہ خیر. وہی نازیہ بہن، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، باجی آواز جا رہی ہے؟ آ رہی ہے، تھوڑی سی دور سے آ رہی ہے، ذرا آپ نا اس کے نزدیک ہو جائیں یا جگہ بدل لیں. جی اب بہتر ہے، باجی ابھی جا رہی ہوئے گی. اب بہتر ہے، ٹھیک ہے، جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. شروع کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سین کو نکالیں. الرحمن الرحيم. بسم اللہ. سین بس کی آواز سیٹی والی آنی بسم چاہیے. الله بسم الله الرحمن الرحيم. صحیح بابا جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. والعاديات ضبحا. والعادیات والعاديات ضبحا. ضا کہیں گے تو اس میں یہ ہے کہ وہ صحیح ضا بابا. کی طرف دوسرا دود کی آواز نکالنے کی کوشش کریں. عربی میں دود ہے، ٹھیک ہے. دود، باجی سائڈ میں ہاں دانت کے سائڈ میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے. ضبحا. اگر آپ ادھر سے لگنی ہے، لگ رہی ہے 5 داڑوں سے، تو آئدر سائڈ، کوئی بھی سائڈ ہو سکتی ہے، لیفٹ اور رائٹ، لیکن لگنی چاہیے. جہاں پہ دونوں لگ رہے ہیں تو تب بھی، لیکن ادھر اگر آپ دود کی بجائے ضبحا. زود کہہ رہے ہیں تو اس کے ادھر لگنی چاہیے، ورنہ اپنی زا کی طرف ہے اور زال کی طرف، ٹھیک ہے. اور زا بھی ہے تو زا والی زا کی طرف بھی لوگ چلے جاتے ہیں، تو یہ خیال رکھیں ان کا، ٹھیک ہے. آگے. والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا. فالمغيرات غین اور موٹا کریں، صبحا. غین اور موٹا کریں. فالمغيرات صبحا. غی کی آواز آ رہی ہے، غی کی. تو مغیرات، غین کے لیے پیچھے سے زبان بھی اٹھتی ہے نا، زبان بھی پیچھے سے اٹھتی. فالمغيرات. اب تھوڑا جی اور باجی. موٹا ہے.
فالمغيرات صبحا. ओके, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अब शाजिया बहन, आप अगले वाली जो आगे वाली हैं आयतें वो पढ़िए। उनमें हमारी वाव आ रही है और फा आ रही है, ठीक है। इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़असरना बिही नक़आ, रा को मोटा करें। फ़असरना बिही नक़आ, ओके, फ़अस फ़असरना बिही नक़आ, फ़असरना बिही नक़आ। फ़असरना बिही नक़आ। आपकी गलती कहाँ है, मुझे आप बताएं। अ, रा मोटा नहीं कर रही। नून के ऊपर, नून के आगे अलिफ है, नो, वो डाल ठीक रहे हैं आप। है असल इंशाल्लाह। ज्यादा बड़ी गलती वो है, ओके, क्योंकि आप नून के आगे अलिफ डाल रहे हैं। सही। फ़असरना बिही नक़आ, फ़वस फ़वस फ़वसतना बिही जमआ, अगेन आपका नून के आगे अलिफ लग गया। फ़वस 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 फ़वसतना बिही, फ़वसत फ़वसत। अब ता के ऊपर फ़वसतना कलकला भी होगा बिही छोटा। जमआ। जी जी। फ़वसतना बिही जमआ। इन जहाँ पे पहली जो आयत नंबर 4 थी उसके काफ के ऊपर कलकला है। जी सिस्टर। जी है। नक़ नक़आ नक़आ। हाँ जी। तो मैं बहनों को बताने के लिए कर रही हूँ कि जहाँ पे भी कलकला था, वरना आपने किया था। ठीक है। इन्नल इंसान बिही, सिस्टर आगे से मुझे हो गया। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, व इन लकनूद, नूद ना करे, क्योंकि लकनूद। सख्ती नहीं उसके ऊपर करनी, क्योंकि दाल बहुत नरम, यानी कि आस्ता से छोड़ देना है उसको। ठीक हो गया। नूद, मैंने नूद। एक्चुअली उसमें ना कलकला कर दिया, लकनूद। दाल के ऊपर कलकला तो होगा जब आप रुकेंगे। हाँ जी। कलकला लेटर है ना। हाँ जी। इन्नल इन्नल इंसान, नल, नल पे भी रुकना है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, जी। लकनूद। आसानी से छोड़ दें इन्नल उसको। इंसान लिरब्बिही रा को लकनूद, मोटा करें। रा रा रब्बी। लिरब्बिही लकनूद। बा व मोटी होगी बाद में, रा के बाद। रा के बाद बा फा। मोटा, मैंने आज बताया, और बा मोटी है कि नहीं। तबा हमेशा बारीक रहेगा, हमेशा बारीक रहेगी। सख्ती से मजबूती रब्बी, से बा होगा। यूं ही आप बा के ऊपर आएंगे, बा को बारीक कर देंगे। रब, रब्बी, बी। लिरब्बिही लकनूद, ओके, व इन्नहु। जज़ाकल्लाह खैर। बस 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 बस, इतना ही बहुत है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हाना ताला आसानी पैदा करे। अपनी गलतियां जहाँ पे आपको पता चल गया, निशान लगा ले और उनको ठीक करने की कोशिश करें। आगे है बाकी बहनों ने, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, जिनकी बारी आ गई है वो नीचे कर ले हाथ, ताकि आसानी हो जाए मेरे लिए। फिरदौस बहन, आप पढ़ेंगे प्लीज। अच्छा, शहनाज बहन का भी हाथ खड़ा है। शहनाज बहन, अब मैंने फिरदौस बहन को कह दिया है कि वो पढ़ती हैं, तो फिर बाद में आप पढ़े। नहीं, उनका हाथ चला गया। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर फिर रहीम। राह राह राह, इसको हिलाना नहीं है, ठीक है। दोबारा पढ़े, दोबारा पढ़े, दोबारा पढ़े। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर नहीं, इसको पूरी को पढ़े ना। फिर रहमान से या बिस आपके आवाज में कुछ हो रहा है आपके। मुझे तो नहीं लग रहा अच्छा, मेरे फिर हो रहा है। नेट का। बिस डिस्टॉर्शन हो रहा है थोड़ा। आप सब बहनों को आवाज ठीक आ रही है। थोड़ी सी शोर आ रहा है। शोर आ रहा है ना, वो मुझे भी कुछ आया। शोर आ रहा है, वाइब्रेशन हो रही है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब सही हुआ। हाँ जी। मेरा है शायद, मेरी प्रॉब्लम है, मेरे माइक में कोई प्रॉब्लम। ठीक है। फअसरना बिही मेरा है। जी पढ़ूं। हाँ जी, आप पढ़े।
فأثرنا به نقعا नून को लंबा नहीं करना, فأثرنا به नून نقعا को लंबा नहीं करना, अलिफ डाल रहे हैं आप। فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا فأثرنا به نقعا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا सत فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه नहीं 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 फवसतना बिही जमआ। فوسطنا به جمعا आप अपने नून के आगे अलिफ लगा रही हैं बहन। فوسطنا به جمعا जामा आ नहीं है, क्योंकि आप जब जामा आ कह रहे हैं जी तो मीम के ऊपर जबर लगा के पढ़ रहे हैं, ठीक है। जी तो मीम के जम ऊपर जबर जम अच्छा आ فوسطنا به جمعا फवसतना बिही जमआ فوسطنا به جمعا जमआ। इसके ऊपर होल्ड करके नहीं, जम नहीं करना, जमआ बहुत आसानी के साथ उधर होल्ड करना है आवाज को। सही है हम्म, फिर से पढ़ो ठीक, हाँ जी फिर से इसको पढ़े। फवसतना बिही जमआ फिर से गलत हुआ फवसतना बिही पहले जम ता को मोटा करें, फवसतना बिही जमआ बिही बिही फवसत, पहले कहे फवसत फव फवसतना बिही जमआ सत कलकला करें, फवसतना नहीं इसको छोड़े ना, सत ना बिही सत ना सीन सत फवसतना बिही जमआ ठीक है, आगे पढ़े। नल इंसान टाइम लिरब्बिही लगाए नून के ऊपर, इन्नल इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद रब्बिही लकनूद सही है हाँ जी, इसको प्रैक्टिस करें। नहीं नहीं बस इतना ही, नून शद वाला है, गुन्ना होगा, अकमल गुन्ना होगा, ठीक है। इन इसको ख्याल रखने, इन नहीं करना, और इन नल भी नहीं होता, ठीक है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद अभी भी आपकी जो जेर है वो मजहूल है थोड़ी सी, रब्बी बी नीचे को आवाज जाए। अच्छा फिर से पढ़ूं हाँ, ली रब्बी। अब बा की प्रैक्टिस है, फा की है, वाओ की है, 3 हरूफ है, और मीम की भी है, चारों आ गए हैं, ठीक है जहाँ पे, ठीक है जी जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह सुब्हान व तआला आसानी पैदा करे। अब शहनाज बहन अपने आप को अनम्यूट करें और पढ़ें। सर जी ये ना मेरे पास कोई एक्स्ट्रा गैजेट पड़ा हुआ है जिसकी आवाज हो रही है, शायद मे- आपके पास कोई, मेरी तो वो लग रही है, लेकिन मुझे नजर नहीं कुछ भी आ रहा कि मेरे पास एक्स्ट्रा है ना। मोबाइल थोड़ा सा ना डिस्टेंस पे कर लें। एक मिनट, मुझे पहले ना पॉज करना पड़ेगा इसको। नहीं नहीं आपका नहीं है, आप कर रहे हैं क्योंकि पहले भी तो आप पढ़ाई थी, कुछ नहीं हो रहा था, बस अब आप आपको पढ़ाएंगे। आवाज ठीक, बाकी सब बहनों को आवाज ठीक आ रही है? हाँ हम सब कुछ अभी कर रही हैं। ठीक फिर हो गई। अब फिर हो रही थी, मैं बोल नहीं रही थी लेकिन आवाज आ रही थी। जी फिर बोले। हाँ बोलिए, मतलब अब सही है, खामोशी है अभी तो, आप हाँ बोलिए। जी, आपका ठीक है, मेरा भी फिर ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ी सी आवाज आई है। बीच में एक मिनट ना मुझे करना पड़ेगा, मुझे मेरी वाईफाई चेक करने दो, इंशाल्लाह अभी मैं इसको ठीक है इंशाल्लाह। अब शहनाज बहन
आपकी बारी है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अच्छा, आपको क्या हुआ कि तौ के लिए आपने थोड़ा-सा लगता है जैसे ना उसको खुद मोटा करने की कोशिश की है। तौ तौ क्योंकि आपके होंठ गोल हुए हैं, आपने मुँह गोल किया है। मिनश शैतो नहीं, मिनश शैतो तौ के लिए ज़ुबान की जड़ पीछे से उठेगी, लेकिन आपके होंठों को मिनश शैतो नहीं। मिनश शैतो तौ आपका मुँह खुला होना चाहिए तौ के लिए, ठीक है? मिनश शैतो आप पहले से थोड़ा-सा बेहतर है, लेकिन आपका ना मुँह अगर आपका गोल हो रहा है, गोलाई में जा रहा है, होंठ गोल हो रहे हैं, तो जहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है? शैतानिर्रजीम। ठीक है, आगे बढ़े क्योंकि आप मुझे लग रहा है, फ़ील हो रहा है कि आप ना आगे से उनको मोटा करने की कोशिश करते हैं। ज़ुबान की जड़ को पीछे से उठा के मोटा करते हैं, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ से पढ़ूं? ये जो खुला हुआ है ना आपके सामने आयत नंबर 4 से। 4 से। हुँ, फवासतना से बाजी। जी। जी। चलो ठीक है, इधर से पहले 4 इससे पहले वाली है। अच्छा, इन्नल इंसाना से। फ़असर फ़असरन बिही नक़आ। फआसरना कहाँ पे है? चलो वो ठीक बहुत है, फ़वसतना से पढ़ लें, फ़वसतना नहीं, बिही। बहुत बारीक है ना, मेरा थोड़ा आँख का मसला है, इसलिए मेरे को बहुत देखना पड़ता है। ठीक है, आप जिधर से चाहते हैं ना उधर से पढ़ लें बस। जिधर से आपके सामने खुला हुआ है उधर से पढ़ लें बस। जी जी अपना कुरान अपने पास रखा करें। अपना कुरान जिससे आप रोज़ाना पढ़ते हैं ना, वो जी पास जी रखा करें, उसको जी खोला करें, ठीक है? जी जी। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। फिर पढ़ें। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। अब इन नल लाम के मखरज के ऊपर रहे। इंसान नून के आगे अलिफ नहीं लगाना, नून को लंबा नहीं करना। इंसाना लिरब्बिही लकनूद। लकनूद। लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। नहीं, बहुत सख्ती से शहीद, एक तो ही को बहुत नहीं खींचना, दो अलिफ ही है, दो लशहीद हरकत। शहीद, लशहीद। ला शहीद। दाल को सख्ती के साथ मत छोड़े प्लीज। ला कलकला नहीं है शहीद, दाल पे? दाल के कलकला है ऊपर, ला शहदी, ला शहीद, बस शहीद। आसानी से उसको छोड़ देना है, शहीद करते हैं और आप तो वो तो सख्ती एक्स्ट्रा लग रही होती है ना। लशहीद ला शहीद, ला शहीद, इसको सख्ती ना दे, दाल के ऊपर सख्ती नहीं। दाल ना मोटा हर्फ है ना सख्ती वाला है, ये बारीक है। लशहीद ला शहीद, लशहीद ला शहीद, ला शहीद, आसानी से छोड़ दे जुबान। लशहीद लशहीद। चलो ठीक है, इंशाल्लाह इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? जी इसके ऊपर सख्ती नहीं करनी। आप अपने नोट्स में लिख लें कि दाल के ऊपर आप सख्ती करते हैं, जज्म वाले के ऊपर रुकने लशहीद के लिए वो सख्ती नहीं करनी है आपने, ठीक है? लशहीद। क्योंकि अगर ना तो हाँ, अब बेहतर था जो आखिर में पड़ा है ना, अब बेहतर था जी थोड़ा सा, ठीक है? जी जी जी। दूसरा ज़ालिका के का के आगे अलिफ नहीं है, उसको आपने खींच दिया, यूं ही खींचेंगे अलिफ आ जाएगा, ठीक है? वाओ अला ज़ालिका लशहीद आला नहीं है। अब दोबारा इसको पढ़े इसी आयत को। व इन्नहु अला आयन है ना। हाँ जी, हाँ जी, व इसको पढ़े। इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। अब प्रॉब्लम मेरी बहन ये है कि आइन के आगे जो लाम है उसको आप छोटा रख रहे हैं, 2 काउंट के बराबर अला लंबा करना है। और गौर से सुने अला गौर से अला सुने। आला, ठीक है। अब ज़ालिका को कहें। ज़ा
ज़ालिका हाँ, ज़ालिका। आप कहते हैं ज़ालिका, आला ज़ा- ज़ालिका, यानी कि जहाँ पे लंबा हाँ, करना है, मतलब वहाँ पे काफ आप को नहीं छोटा कर खींचना है, काफ को नहीं खींचना है, जबर है, रुक जाना है ना। रुक जाना नहीं, छोटा रखना है। जी जी। ज़ालिका, ज़ालिका ज़ालिका, लशहीद, शहीद। आसानी से छोड़ दें इसको, ताकि शहीद इसके ऊपर कलकला हो शहीद। जाए। हाँ ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। इनके ऊपर आप जहाँ-जहाँ पे है, एक तो आपके आखिरी हरूफ जो है ना, अल्फाज के आखिरी हरूफ, खासकर ज़बर वाले, वो आप लंबे करते हैं, ठीक है? जी उनके ऊपर गौर फ़िक्र करनी है, क्योंकि का भी आपने लंबा किया और इंसान का नून भी आपने खींचा, अलिफ लगाया दोनों के आगे। इससे इंसाना तो इंसाना। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला आसानी पैदा करे। बेशक हम इंसान हैं और गलतियां तो होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह कुरान पढ़ने में हमने गलती को जितना भी कर सके इसको ठीक करना है इंशाल्लाह। आगे अल्लाह सुब्हाना व तआला आसानी पैदा करने वाले हैं। तस्नीम बहन, आपका हाथ खड़ा है, आप पढ़ेंगे प्लीज? ये बाजी कौन सी मुझे कहते तस्नीम हैं? बहन है? नहीं मैं तो पढ़ लिया बाजी। आपने पा लिया, फिर आपका हाथ खड़ा था इसलिए मैं कह रही हूँ। मैं स्टॉप अच्छा, कर मैंने रही सोचा थी। शायद कोई और बहन है तस्नीम। ठीक है, अब मजीदा बहन अपने आप को अनम्यूट करें। जी बाजी। बाजी कौन सी आयत पढ़ूं? मैं देख रही हूँ कि इसमें अम, आगे वाली आयत पढ़े अगर आप, व इन्नहु से। अच्छा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाजी इन्नहु से ना, हाँ जी, व इन्नहु से पढ़े। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। अच्छा, मैंने सोचा उससे पहला इन्नहु आप कह रहे हैं। सॉरी बाजी, वो वाला पढ़ूं? अच्छा सॉरी बाजी, हाँ, सॉरी। व इन्नहु अला ज़ालिका लशदीद। अला व नहीं इन है, आप हमजा को अह, नहीं अला, अह, अगर आप अल उसको आइन, आइन के लिए मुंह खोले, आदा, आ आ वैसे भी नर्म है, यानी कि आ बारीक हर्फ है, आइन आ आ आ आ आ आला। आ व इन्नहु अला ज़ालिका लशदीद। व लशहीद, इन्नहु लिहुब लशहीद, लशहीद। लशहीद लशहीद। ठीक है बाजी। आगे व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। आप जल्दी क्यों कर रहे हैं? व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। हुब्बिल खैरी व लशदीद। इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। दाल के ऊपर कलकला थोड़ा और वाज़ेह लश करें। लशदीद। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आगे अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कबूर। रा के आगे अलिफ है, नहीं बाजी। दोबारा पढ़ें फिर फ इसको। और पेश अफला। 1 मिनट पहले पेश के लिए होंठ गोल रखेंगे आप। अच्छा जी। रा को आखिर में स्टॉप करते हुए उसके ऊपर मोटा करेंगे उसको। जी रा की रा भी मोटी रहेगी। जी। ठीक है, तो इन अच्छा जी सब बाजी। का ख्याल अफ रखते हुए अब आपने पढ़ना है। अच्छा जी। अफला यालमु इज़ा सबूरा हैं? सबूरा मा फिल कबूर। हाँ, फिर आप गड़बड़ कर गए, इसको दोबारा पढ़े। अच्छा, बुसिरा, सॉरी बाजी। बाजी मैं दोबारा पढ़ती हूँ। हाँ जी, अफला यालमु इज़ा बु, बूस बुसिरा मा फिल कबूर। काफ के ऊपर आप होंठ गोल नहीं करते, मा फिल जबर के साथ पढ़ रहे हैं, कबूर, मा कबूर, फिल कुबूर कुबूर, कुबूर, कुबूर फिल कुबूर। कुबूर। अच्छा, यालमु बू बू यालमु इज़ा बुसिरा इजा बा मोटा नहीं होगा। बु, 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 बूसीरा बुसिरा नहीं, आइन तो फिर आपका आता नहीं है ना, इसकी बु। प्रॉब्लम है। आइन नहीं आ रहा। बाजी मैं आइन दोबारा करती हूँ। न, या अफला बूसीरा यालमु को इज़ा, पहले सॉरी बाजी। बूसीरा को कहे, बाकी आपने बु ठीक पढ़ा है, लेकिन बु इसको कुछ बु टाइम कहे। बुसिरा बू आइन बु आ बु बू
बू बू सिरा बू अपने गले में भी हाथ रख सकते हैं जैसे भी जी मैंने बू रखा हुआ सिरा बू 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 सिरा सिरा अपना फिर बू मुंह सिरा मुंह ऊपर कर ले अच्छा जी यानी कि एक बू तरकीब नहीं ठीक आ रही दूसरी कर ले अच्छा बाजी मैं आप करती हूँ ऊपर कर लिया मैंने ठीक। बू सिरा बू बू सिरा बू सिरा बू 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 सिरा आइन आइन ये बू मुश्किल है आइन निकालना जब जज्म के साथ हो हाँ जी बाजी हाँ जी बू खास कर बू पहले पेश आ रही है अब आगे जज्म वाला हर्फ जो है आइन जो हाँ है जी बाजी वो निकालना बू उससे भी ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि इन दोनों को बारीक भी रखना बू है एट द सेम टाइम पेश को होंठ हाँ गोल जी रखने हैं एट द सेम टाइम फिर आपने आइन और हमजा में फर्क करते हुए पढ़ना है ना फर्क करना हाँ जी बू बू सिरा बू ठीक है बाजी अब ठीक है बू 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 सिरा बू बू सिरा थोड़ा सा आइन की आवाज आई है लेकिन उतनी नहीं आई बू ठीक है बू बू सिरा इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे सुन के अच्छा जी ठीक है कारी को सुनेंगे बाजी उसके वो साथ पढ़ेंगे जज्म फिर वाला आइन है ना तो पहले नहीं नहीं उससे आप पहले कारी पेश को है सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ जी सुन अच्छा के बाजी और इंशाल्लाह उनको अमन सईद रश्दी जो है उनको हाँ जी सुनना है बाजी जो ठीक है आपने भेजा हुआ ना वो तो अब इसका तीसवीं इसका ये है कि आप फिल कुबूर कहें मा फिल फिल कुबूर मा माफिल कबूर कुबूर कुबूर काफ मोटा भी रखना है कुबूर कुबूर हाँ जी कुबूर अब कुबूर बा मोटी होगी कि बरीक रहेगी नहीं बाजी बारीक होगी हर वक्त ही हाँ है जी ठीक है बू हाँ जी से रा का क्या और बनेगा कुबूर कबूर कुबूर 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 कबूर कुबूर बूर कुबूर रा को मोटा रखना है ठीक है अच्छा जी इंशाल्लाह बाजी मैं जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा निशान लगा दूंगी परवीन कपूर बहन आप इन्हीं आयतों को पढ़े जहां से इन बहन ने छोड़ा है नहीं छोड़ा नहीं ऊपर जहां से इन्होंने पढ़ा किया था जी जी आऊज़ु आयत नंबर बिल्लाहि 7 जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नहु अला हु को लंबा ज़ालिका करें दो दो काउंट एक सेकंड व इन्नहु अला नहीं है ना यही आप हु कहते हैं कहाँ हु का हु अच्छा इफा व व हाँ इन्नहु व इन्नहु अला ज़ालिका अच्छा शायद लशहीद मुझे प्रॉब्लम है अच्छा और बहनें इसको क्या पढ़ती हैं उल्टा पेश नहीं है इसके ऊपर हाँ उल्टा पेश है फिर आप उल्टा पेश के कितने लंबाई कितनी है इसकी उल्टा पेश के दो है दो वो करते नहीं है ना आप ये मैं प्रॉब्लम पूछ रही हूँ अच्छा आपसे अब मैं अपने हिसाब से तो कर रही हूँ लेकिन लग ना आप तक नहीं पहुंच नहीं रहा ठीक है फिर से नहीं नहीं करती हूँ मुझे मुझे पहुंच रहा है लेकिन आप अच्छा इन ऑफ लंबा नहीं कर रहे आप सिर्फ हरकत इन्ना पढ़ को भी रहे हैं इन्ना को इन्नहु आप कह रहे हैं इन्नहु नहीं इन्नहु मैं फिर से करती हूँ इन्नहु जी इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद जी जी व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व लशहीद लशहीद व ओके इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लकनूद नहीं नहीं व ये कौन सा इन पढ़ गए कौन का पढ़ गए अच्छा आप ऊपर चले गए आप मिला गए हैं दो आयतों को दोबारा पढ़ें इसको जी अच्छा अलग अलग पढ़ूं नहीं नहीं आप ऐसा किया है आपने आपने आयत नंबर 8 को और अच्छा आयत नंबर 6 को मिला दिया है हाँ मेरी वो बहन ऊपर नीचे चला गया था ना नजर नहीं आया ठीक है हाँ व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद रा के आगे या है जज़म वाली लिहुब्बिल खैरि लशहीद खैरी खैरी री खैरी नहीं है आप या जज़म वाली डाल अच्छा रहे हैं हाँ खैरी बस व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशहीद लशदीद लशदीद लाम के ल जज़म वाले लाम के बाहर आएंगे कि मखरज में रहेंगे मखरज में ही रहेंगे मखरज में रहेंगे लशदीद नहीं नहीं अफला जो है ना लिहुब बिल खैरी बिल नहीं है बिल नहीं है ठीक है लिहुब
लिहुब्बिल खै तो क्या कहूँ लिहुब्बी आप बस बिल बिल कर जाते हैं ना मेरी बहन, बिल खैर से लाम के बिल मखरज से बाहर आ जाती हैं आप। बिल 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 अच्छा मखरज में वो रहे, लम्बन हाँ बिल सही सही व बाहर नहीं आना। इन हाँ ठीक है व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद लशदीद ये भी आपकी थोड़ी सी ओके, अब आप गौर से सुनेंगे। व लशहीद इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि खैरि लशदीद। लशदीद व क्योंकि ये इन मिक्स अप है जी आपकी, शहीद ही हाँ आप बार बार पढ़ रहे हैं, हाँ तो वो मैं ना ऊपर वाला देख जा रही हूँ तो इसलिए कंफ्यूजन हो ठीक है आप इसको आप पढ़ेंगे। व इन जी व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद बेहतर है। अफल जी लशदीद आसानी से, शदीद लशदीद नहीं करना, यानी कि इसके ऊपर दाल के ऊपर सख्ती से नहीं रुकना, ठीक है। लशदीद दाल को लशदीद बहुत आसानी के साथ दाल हाँ के मखरज से बाहर आ जाना होता है, ठीक है। दीद जी लशदीद 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 लशदीद, क्योंकि दाल ना तो मोटा है, ना ही इसके ऊपर यानी कि कोई और सख्ती करने की जरूरत है, शाद भी नहीं है, और शाद में भी ये नहीं होता इतना ना। लशदीद लशदीद लशदीद, ठीक है, लशदीद आगे वाला। अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर अफला यअलम इज़ा लमु इज़ा मा बुसिरा फिल कुबूर। जी मा फिल कुबूर कुबूर, रा को मोटा रखते, बू और कुबूर कू मोटा, बू कुब बारीक, और जी रा मोटा। जी कुबूर, कुबूर जी कुबूर ओ नहीं है, बोर भी नहीं है, कुबूर आपने होंठ गोल करे। जी कुबूर कुबूर ओके, फिर इसको पढ़े। जी अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा इजा फिल ये हमजा आप कर रहे हैं, हाँ इसको ये हमजा से हमजा बचाए, अपना थोड़ा सा गला ऊपर करे या कुछ करे। जी बू अफ- सिरा, अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा बू फिल सिरा, रबा के ऊपर होंठ गोल करें, जी पेश है। बु बुसिरा मा फिल कुबूर क्या, अब कुबूर इंशाल्लाह आप इसकी इस सूरत को सुनेंगे बार बार और प्रैक्टिस करेंगे साथ में कारी के, ठीक है। इंशाल्लाह जी जजाकिल्लाह खैरन कसीरा। आगे कौन बहन है? रिफत बहन, आप बोलें प्लीज। हाँ जी बाजी, कहाँ से पढ़ूं? इधर से ही पढ़ें, क्योंकि ये इसकी गलतियां जो है ना थोड़ी सी निकल व जाए। इन्नहु से हाँ जी, इन्नल इंसाना से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि गलतियां जो हैं वो फिर पीछे से। अच्छा, पीछे से जनी आप जा सकते हैं। फा का आपने प्रैक्टिस करनी है तो उससे पीछे चले जाएं। फवा सत होना भी ही। ठीक है आंटी। अभी बिस तक बिस हमारी मीम की प्रैक्टिस नहीं आ गई है, सच आ गई, ठीक है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फवसतना बिही जमआ जम आ जम जम आइन जमआ को बरीक है, जमआ जमआ नहीं है। जम जमआ कभी आप बारीक जम पढ़ रहे हैं, कभी आप मोटा पढ़ रहे हैं, तो इसको एक रखे। जमआ ठीक है। जम आइन को निकाले, हमजा की तरफ ना जमआ जाए। ओके, आगे आगे जमआ करें इसको। आप सुनेंगे अपना जब बाद में ना, तो फिर गौर करेंगे इंशाल्लाह। आप आगे बढ़े। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद इन नल नल इन नल इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद लिरब्बिही 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 रा मोटा लकनूद है, ली रो रो रब रब लिरब्बिही। लिरब्बिही लिरब्बिही लकनूद। आगे बात। ठीक है, इतना इसको आप सुनेंगे, सब बहनें सुनेंगे कारी की, ठीक है। क्योंकि ये कारी को तो मैं भेज चुकी हूँ, क्योंकि उसमें सारा पूरा सिपारा है। अब कौन बहन रहती हैं?
रजिया बहन आप पढ़ लें इसको, और नुशीन बहन रहती हैं, और भी जो भी बहन रहती हैं। टाइम वैसे काफी हो रहा है, क्योंकि आज मैंने आऊज़ु क्योंकि वो जो बिल्लाहि मिनश फैल के सारे शैतान। मखारिज इधर उधर थे, वो जो जनी के फा भी अलहदा में है, वाव अलहदा में है, मीम अलहदा में है, तो इस तरह थोड़ा सा करते करते सारी सूरत का ही हो गया। ठीक है, इंशाल्लाह आप पढ़ें इसको। इससे बाजी आगे कहाँ वाली से पढ़े? नहू आला दालिका इसमें पढ़े। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बार बार आउज़ रजीम। बिल्ला नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप इससे शुरू करें, क्योंकि आप कौन से बोल रहे हैं जो बाद में ना। ठीक है, पढ़े आप इसको। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। ला शहीद, हा की आवाज आनी ला चाहिए। थोड़े से आपके हल्के हल्के फेडिड आ रहे हैं, हरूफ जो है फेडिड है थोड़े लशहीद। से। ठीक है, आगे वाला। व इन्नहु लिहुब्बी व लिहुब्बिल लिहुब्बिल व लिहुब्बिल इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। खैरी ला शदीद। खैरि लशदीद। तो अब इसको आप ना, हाँ, जी इतना ठीक है। अब आप इसको ना माशाल्लाह आपका आज बहुत अच्छा आपने पढ़ा है। फेडिड हरूफ नहीं आनी चाहिए, यानी कि उनकी आवाज ऐसा ना हो कि थोड़ी आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा यानी अपने आप को जा तो सीधा बैठ जाए, तो उससे होता है। ठीक है, फिर आगे है नुशीन बहन, आप पढ़ेंगे इससे आगे वाला। जी। अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर। फिर पढ़े इसको। जी रुकना नहीं है आपने, मुझे पता है आप ठीक करने के लिए रुक रहे हैं ना, जी लेकिन जी कोशिश करनी है कि इसके ऊपर इतना नहीं पॉज देना जितना आप दे रहे हैं। ठीक है। अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर। महफिल कुबूर, फिल मा कुबूर। फिल मा फिल कुबूर। अफला यालमु मु मु अफला यालमु, लंबा नहीं है म्यू मु, लेकिन इसके लिए होंठ पूरे गोल है। अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर। अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर। फेल है, अभी भी आप फेल ही कह रहे हैं, मजहूल पढ़ अच्छा, रहे हैं मा जी। फिल फी पहले फी कहे, फिल फिल फी फिल 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 फी तो फिल कहे पहले, फिल। फिल हाँ, फिल 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 कुबूर। कुबूर अच्छा, रा को कुबूर मोटा करें, कुबूर। कुबूर कुबूर आगे बूर। वहुस्सिल मा फिस्सुदूर। वाहुस्सिला, हा के लिए भी होंठ बिल्कुल गोल। वाहुस्सिला मा फी सुदूर। वहुस्सिल मा फिस्सुदूर। रा के लिए बारीक ना, आखिरी रा को बारीक नहीं रखना, बस ये आपने ख्याल रखना है इसका। ठीक है, क्योंकि मा दोनों रा की आखिरी। फिस्सुदूर। जी अब रॉ आपको हैवी पता है आएगा। ना कि रा हैवी है, जहाँ पे है ना रुकने के लिए, जी ना रुकने के लिए दोनों हम्म। रा हैवी होंगे, लेकिन कंटिन्यू करने के लिए दोनों रा बारीक है। ठीक है, जी जेर आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है। वहुस्सिल मा फिस्सुदूर। ठीक है, सरैया बहन आप सुदूर। पढ़ लें प्लीज। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। अब मैं जल्दी से कर रही हूँ। ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैरन। अब मीम की प्रैक्टिस होगी, आगे वाली जो आयत है इसमें हुस्सिला से पहले मेरी बहन पढ़े, फा की भी आ जाती, वाओ की भी, मीम, ये सारे ही इन दो आयात में हैं इकट्ठे हुए हुए, तो इसको पढ़े प्लीज सरैया बहन जल्दी से। सरैया बहन नहीं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम खत्म करते हैं। सिस्टर मैं कर लूं? जी कोई बहन रह तो नहीं गई अभी? बाजी मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जी आपने फिर अनम्यूट बिस्मिल्लाह। नहीं किया होगा। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी दो आयात जो है ना इनको पढ़ना है। जी। वहुस्सिला मा फिस्सुदूर। लाम को खींचना नहीं है। अच्छा।
وحصل ما فی ابھی الصدور بھی آپ لا کو کھینچ رہے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وحصل ما فی الصدور را کو ان موٹا رکھنا ہے، دور صدور آگے والا، ان ربهم نون کے آگے الف نہیں لگانا، ان 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 ربهم را کو بهم موٹا کرنے، ربہم، ربهم بهم جہاں پہ یوم ہولڈ کر کے رکھنا ہے، جہاں پہ ایک میم کا آ رہا ہے اصول جزم والی کا، وہ ان آپ ربهم سنیں پہلے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، لخبیر جہاں پہ را باریک رہے گی، لخبیر خواہ موٹا باقی سب باریک، لخبیر، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر یومئذ لخبیر، یومئذ لخبیر لخبیر، لخبیر لخبیر، لخبیر، ذل خبیر زال کو ٹھیک کرے، ذلہ نہیں ہے، زال ہے، زال، ذل زال کا مخرج کیا ہے باجی؟ میں نے باجی آپ کو کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، یومئذ لخبیر یومئی دال، دال کا مخرج کیا ہے؟ زال اوپر والے دو دانت، جی جب زبان کا کنارہ اوپر والے دو دانتوں کے کنارے سے، یعنی سرا، زبان کا سرا اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگے تو زال ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زا کا مخرج نہیں پڑھنا اس کو، ذل خبیر، خبیر جزاک اللہ خیرن، انشاءاللہ تعالی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے آپ سب لوگوں نے، اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کا پڑھنا قبول کرے۔ کوئی بہن رہ تو نہیں گئی؟ کوئی بہن رہ تو نہیں گئی؟ نہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بالصبر جہاں پہ بھی را موٹی رہے گی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ باجی ایک بات کہنی تھی، پوچھے پوچھے۔ وہ نا یہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے نا، تو اگر 5:30 بجے شروع کر لیں تو پھر میں ساری کلاس اٹینڈ کروں گی، تو پھر بچوں کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے فجر کی نماز کا بھی۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، ورنہ آپ جہاں پہ جوائن کر سکے آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک